15 मिनट टाइम ऑफ करो। मैम आप मेरे मास्टर नहीं हो, मैं आपका स्टूडेंट। काम नहीं कर रहे हैं, इस डेलीगेट याद नहीं, तो दिमाग में भी नहीं है कुछ। कहाँ गए सब चीज दिमाग से? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जितनी क्लास चलती है वो क्लास करो, समझ गई? और संडे को मेरी बिल्कुल पहली क्लास शुरू हो रही है 12 बजे से WCF, वो भी करो। और संडे को एक और बैच है 9 बजे से WCF का, उसकी 1-2 क्लास हुई है, वो ज़्यादा क्लास नहीं हुई है, समझ गए? इसके लिए आप आए थे मेरे पास और आप लोग देखते ही पकड़ लिया, ये काम करते हैं सुबह। एक झलक काफी होता बच्चों को देखने का, इसको तो पढ़ना चाहिए। समझे? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 10 बजे से लेकर जितनी बैच चलती है वो करोगे। और संडे को बिल्कुल 12 बजे पहली क्लास है, या संडे को 9 बजे, उस पर WCF शुरू नहीं हुआ, शुरू होना है, तो 9 बजे आओ, वो मेरी बैच करो। बच्चे का ज़्यादा होंगे तो बैच लेंगे मैं WCF की 12 बजे। अदरवाइज जो संडे को मेरी WCF की 9 बजे की बैच है बिल्कुल शुरू होगी, ठीक है? तो वो ध्यान रखना, ठीक है? चलो 9-9:15 बजे तक। इस प्रोग्राम को लाइफ टाइम नहीं भूलना। तुमने डेलीगेट कहाँ यूज किया? आई विल मेक 2 प्रोग्राम फॉर डेलीगेट। आज एक परसों और कल काफी समय अपना बैठ के अपना चीजों को आप रिवाइज कीजिए, और ज्यादा रिवाइज करो डेटाबेस की फंक्शन, डेटाबेस का प्रोसीजर। कल हमने एक फाइल दिखाया था डेटाबेस के ट्रिगर का, उसको पढ़ना शुरू कर दो सब। आवाज आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। कहीं से का आवाज आई तो, और को पीछे मुड़ के देखा तो आपको हर क्लास बाहर निकलना जरूरी है क्या? गार्ड बैठो करे यार, मैं कहते चलो मैं स्टार्ट करूं। एकदम खो जाओ मेरी बात होगी, इसके बाद तक लास्ट पार्ट चल रहा है। अब शुरू होगा, बोलो कौन? इम्प्लीमेंटेशन। अब थ्योरी नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा? बोलो इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बात की बात है, कुछ ऐसा बोलो कि बंदा खुश हो जाए। अंकल मैं इसको आज बाइंड अप कर रहा हूँ, डेलीगेट रियल क्या है, और आपको बोलना पड़ेगा बारी का, मैं जो बोलूंगा। डेलीगेट लिखना मत, सुनना। डेलीगेट is a class needs to be instantiated or needs to be instantiated for getting an object. Once we create an object of delegate class, that object is having a parameterized constructor. There we pass a reference of any function. Delegate class is having a parameterized constructor. If class is having a parameterized constructor, I have to pass some information. Like sir, I do SQL connection class, I instantiate, I pass provider. I call SQL query by SQL command class parameterized constructor. I
I call a SQL query by SQL data adapter class parameterized constructor. So by delegate object, so delegate class provides me a parameterized constructor, so I need to define. And within the parameterized constructor, we have the reference of any function. Belongs to any class, doesn't matter. Belong to any class, doesn't matter. But before creating an object of delegate class, before creating an object of delegate class, to whom you want to call? I want to have a function reference. No. Before having a function reference, what function returns? What is the nature of the function? Should be similar to our delegate class. If function is having a return type called int and function takes some argument as int, so I have to make a delegate those type of. Otherwise, I am not supposed to call the function of any class by delegate object. There is a prerequisite, there is a condition. Before calling any function by delegate object, I have to have a proper function signature before calling it. Well, so by delegate object, I can have a reference of any function. Answer, I can take a reference of any function at runtime. I can take a reference of any function, doesn't matter, it belongs to any class. I can have a reference of any function. I can have a reference of any function. Uncle, this. I can have a reference of any function. But I never say, I can only point out the certain things. I can point anywhere. It is dynamic by nature. Like I say, pointer in C. I have seen the pointer in C, sir, when I was doing academic MCA that time. Even though I also pointed today. Pointer of integer type can have a reference of any variable of integer type. That's why the nature of delegate is somehow somewhere. Similarities like what? Pointer. So pointer are dynamic by nature, but array is static by nature. Why? If I declare any array of 20 bytes, they cannot hold more than 20 bytes. It is static by nature. Char x of 20 bytes, printf, scanf, again printf. I cannot increase the size of character array at runtime. It is static by nature. So why I am saying static, you know, because if I create an object of any class, that object is having a static nature. Why? This object is having a reference of the class. So if object is having a reference of any class, then this object can only call the function of that class. It is static by nature. It's called early binding. Things are defined already, what you can call and how you can call. I have taken the ticket of the train. Things are decided, the via the path. Via is defined already, Delhi to Howrah. Via this. Delhi to Patna, via Lucknow, via this. It is decided. At runtime, I cannot change my plan. Any ticket, uncle, any ticket of any railway cannot be dynamic. Never be dynamic. Because the train has to go certain destiny, path is what? Already what? Decided. I used to go Patna, via Lucknow, via Allahabad, via Banaras. It is decided to go. But at runtime, they can't change the path to go. So object of any class is static by nature. Is called early. That's why that object can call own class functions or it can call base class functions. Doesn't mean
it can call own class function or it can call base class function. It is already decided to go. So path is already decided. Inheritance from bottom to top, the path is decided. Who's my base? Who is my base? What I can call, I know better. I don't want to call, but I can call. But what I will call, I know what I will call. Because things are decided. Well, so I have to force in an interview the difference between static and dynamic. So object cannot be dynamic, never. Because type is decided. Wire, path is decided. How you can do. So I want dynamic objects, sir. I want my object should be dynamic. Good, yeah. I want my object should be dynamic. So I can change my plan according to my requirement and all that. So you have to have a polymorphic nature. When you go for an interview, who's agla wala? What is asking to you? What he is, you try to know. And on the basis of that, you try to give your interviews. He's trying to know about you. You're also trying to know about him. It's a correlation. He wants answer. This time you go like this. But sometimes I'm saying wrapper of data and function together is called encapsulation. I know the meaning of this. It's a perfect correct answer. Wrapper of data and function together called encapsulation. I know. It's a correct answer. But he wants the complete description. But if I spell like this, wrapper of data and function together called encapsulation, it means that he has remembered the steps and only here for. Okay, so what is class? It's a blueprint, it's a template, it's a collection of functions. It's a correct answer. But I don't want to go like this. I have to have a convincing ability according to my person who's taking my interview. It's called dynamic by nature. Sometimes, uncle, I appreciate object is static by nature because it has got some dimension, some path, some execution phase. It is decided earlier. But sometimes I can change my plan to go. There is I am recalling my Roorkee Engineering College days. I had to go Roorkee. I took a bus from Mohan Nagar at 7 o'clock or 6:30. It takes 4 o'clock, 4 hours to reach Roorkee in the morning time. In an early morning time, 4 o'clock maximum. मुजफ्फरनगर पहुंच गया जी, क्या हो गया? रास्ता जाम. अब क्या करूं? पाथ चेंज करो. लोकल टैक्सी पकड़ो, लोकल ऑटो वाले को पकड़ो, करके रुड़की पहुंचो. So I want to have a dynamic object so that I can change my execution of the plan or execution of the work path. So delegate provides me, oh great, it provides me the dynamic object which can have a reference of any function at one time. He never says the function only of this class, function of any class. So I will make a delegate at this point, I can call any functions. So by delegate, I can achieve dynamic method invocation. Second only for those man who's having a 10 plus experience, 5 plus experience, 4 plus experience, 3 plus experience. For those. If you listen, it is your greatness. For you, no greatness. So if I go for 2 plus interview, if I say by delegate, I can achieve dynamic method invocation. मैं साले को 2 घंटे में समझाऊं या 2 मिनट में. Resultant क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो. बिकॉज जो तुमने बोला वो तो मुझे पता था. डेलीगेट क्या है? इस गधे को ले जाओ अपने साथ, पूरा नोएडा घूम के आओ, जाओ भागो. ये मेरा डेलीगेट है. कब घुमाएगा बोलो? रन टाइम पे. किसको घुमाएगा मुझे नहीं पता, जो आएगा उसको घुमा देगा. एज ए गाइड यू कैन से एवरी गाइड इज ए डेलीगेट इन भुवनेश्वर और हरिद्वार और विशाखापट्टनम. अब सुनना श्रीवास्तव, सुनो नलक ठीक से, तुम करेगा कोई और डेवलपर बेटा सुन लो. सर, I have seen
The most important use of delegate. Where? Sir, I have a class. ठीक है. I will give the reference of my function to delegate also. I have decided to give. Because they can call my function at any point of time. And they can only call certain functions to achieve a proper or pure encapsulation. ठीक है. इसको जाके ताजमहल घुमा तो करेगा. जो ताजमहल बाहर बंदा बैठा होगा, 100 रुपए दो, एंट्री जल्दी करवा दूंगा. नालायक वो जो गाइड घुमाने वाला है पूरा ताजमहल नहीं घुमाएगा. नालायक तेरे जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स है वो तुमको दिखाएगा. तो मैं एक आदमी के सहारे हर चीजों को समझ नहीं सकता. संधिकरण के द्वारा आप पूरी डॉट समझ नहीं सकते. मैं डेली डॉट के बोलो कनेक्ट डेली गेट कि मैं इसको 10-12 साल से देख रहा हूं. आपको मैं क्या पढ़ा सकता हूं? इस सिलेबस, बट नॉट दी मन की बात ऑफ डेली डॉट नेट. तो मैं एक तुम्हारा व्यू उस डॉट नेट के, तो व्यू एज ए डेलीगेट, डेटाबेस का व्यू. ओ माय गॉड, डेटाबेस का व्यू जहां बोला सिलेक्शन होगा. तब एक टेबल में 16 कॉलम. मैं अपने क्लाइंट को, गधे को टेबल ना देना चाहता. क्या देगा? एक व्यू बना के दे दो. व्यू मुझे सिस्टर की शादी करानी है. नालायक मत भेजो कैसे सिस्टर को तुम उसके पास. कुछ फोटोग्राफ भेज दो. सारे फोटोग्राफ मत भेजो, कुछ फोटोग्राफ भेज दो. कुछ. The view is working as a delegate. They scan, they have certain portion of the entire picture. So client is really calling the word view, and view is having the word some portion of the word table. Create view का नाम, उसके अंदर select पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. उस व्यू में कितने कॉलम गए जी? 2 ही कॉलम गए. और एसक्यूएल कमांड से किसको हम कॉल कर रहे हैं? बोलो व्यू को. व्यू किसको कॉल कर रहा है? बोलो ओनली 2 कॉलम्स. It is a camera. It's a camera, you know. It is a pure delegate model because you want to point out my certain things, either my speaking abilities, my pronunciation, my voice and all, not in the entire body. Why do we? Because by one delegate, I can point out entire part. Because it is having a lens called one camera. Lens is called pointer called delegate. Am I right? You have to focus where you want to point. And to whom you want to point, nobody knows. You can point any student in this batch to go for having recording and all. So, I am trying to say, delegate means you discuss what you want to have on. It should be relevant and to the point in any topic. तो डेलीगेट से हमने सेकंड पॉइंट बोला, क्या अचीव किया? बोलो इन गैप. हमने कुछ ही पॉइंट के ऊपर डिस्कस करे और रिमेनिंग पॉइंट छोड़. और जो भी डिस्कस करे उसकी मैंने इंप्लीमेंटेशन हाइड कर दिया. राइट? हमने मैनेज कराई जी. मैं ये नहीं बोलूंगा मैनेज इतने लाख में हुई. राइट? बस सिंपल वर्ड बोलूंगा मैनेज हुई. ये सारे सामान लाए, कितने का लाए ये मत पूछो तुम्हें. यू वेरी हाइड द वर्ड इंप्लीमेंटेशन is called encapsulation. Hiding of implementation is called encapsulation. You go to open dictionary word encapsulation, hiding of anything is called. You want to what? Dosa. Really, I am making dosa for you. But maybe I am not really allowed to go inside the kitchen. तुमको अंदर नहीं आने. सर तो मेरा मेनू लेकर है, ऑर्डर प्लेस करो.
तो मीनू को देखकर ऑर्डर प्लेस करना ग्रेट एब्स्ट्रैक्शन, राइट? मीनू को पढ़कर ऑर्डर प्लेस करना क्या बोलो? एब्स्ट्रैक्शन। क्यों? वही करो जो तुमको अच्छा लगता है, और तुम गधे कुछ भी ऑर्डर प्लेस करो, मैं तुमको किचन में आने नहीं दूंगा। इस कॉल हाइडिंग ऑफ डिटेल्स, हाइडिंग ऑफ मेथोडोलॉजीज, हाइडिंग ऑफ एल्गोज, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इन्होंने फोटो ले ली, कौन जानता ये फोटो कहां की है? कभी कभी एक समय ऐसा आता कि मैं अपने फोटो को देख के नहीं पहचान पाता ये मैं कहां पे खड़ा था ना, राइट? सोचता हूं, दिमाग में स्ट्रेस देता हूं, अच्छा वहां गया था यार। मैंने देखा एक लड़की ने मेरा फोटो डाला है 2003 या 4 का फेसबुक पे, मैं कहीं खड़ा हूं कि और कुछ बंदे खड़े हैं, मैं जानता हूं ये मैं संदीप करण खड़ा है, बट मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं मैं कहां खड़ा हूं, आई डिडंट गेट। वो 7 का फोटो, तो मैं ही अपने आप को ट्राई नहीं कर रहा मैं कहां हूं। इट इज अ पास्ट। तो डेलीगेट के ऑब्जेक्ट से आप केवल फंक्शन कॉल कर सकते हो जी, फंक्शन के पीछे आपने क्या लुक लिखा है ये नहीं जान सकते हो, राइट? इसको हाइडिंग ऑफ डिटेल्स और हाइडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। आपने झंगाल की साइट देखी खोल के फेसबुक पे? देखा अंकल आपने? बंदा कमाल कर रहा है, पता क्या करता है वो? हम जो भी पढ़ाते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मॉर्निंग में, और जो पढ़ाते हैं डेवलपर्स को संडे को, वो सारे निचोड़ करके अपने फेसबुक पे लिखता है। अब आई शॉक, मैं उसके आर्टिकल को पढ़ रहा था, लगा मैं संदीप करण से बात कर रहा हूं। मेरी चीजों को पूरा सुपर प्रेजेंटेशन में चेंज दिखता है, गुड, बहुत अच्छा बनता है, गुड बाय लिटरेचर एंड वेरी गुड इन लिटरेचर, पूरा लिखता है उसको, कंक्लूड करता है चीजों, लाजवाब, मुझसे अच्छा लगता है, बिल्कुल संदीप करण बोल रहा है। तो मेरे डेलीगेट तो 2 पॉइंट हो गए। डेलीगेट से हम डायनेमिकली नेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें जाना लाजपत नगर जी, मैं डिसाइडेड टू चल जाना लाजपत नगर, मैं गधे गया टॉल पे, लंबी लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन की मेरी हालत खराब, राइट? तो गाड़ी टर्न लो, यहाँ से टर्न लो, सीधे गाड़ी यू टर्न, यहाँ से निकलो, नहीं जाओ से कोई दिक्कत नहीं, सड़क वाले कहां से निकलो। तो मेरे लाइफ में दोनों होना चाहिए, स्टैटिक बाय नेचर और डायनेमिक बाय नेचर। बट भगवान से बनाते हैं लाइफ क्या हो, स्टैटिक, ज्यादा वेरिएंट ना हो, इससे परफॉर्मेंस क्या होगा बोलो? स्लो। हाँ, माना फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, फ्रीडमनेस बढ़ेगा, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा बोलो? डाउन होगा। क्यों? वर्ड है तलाश, बोल, डिस्कवरी कभी खत्म नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, आपने मेरे फंक्शन का रेफरेंस रखा, डैश इट। फंक्शन के अंदर क्या कहानी चल रही है आपको पता नहीं है, बस आप रिटर्न लो, बस आप मेरा खाओ, आउटपुट लो। 50 साल कैसे मत पूछो मेरे से, हाइडिंग ऑफ डिटेल्स। बट उससे पहले ऑर्डर प्लेस करो, करे एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट एंगल डेलीगेट के, 2 पॉइंट हो चुके हैं। नारायण पूछो मैं छोड़ूंगा नहीं यार, नहीं तुम पागल से पढ़ना, क्या करोगे? बहुत पागल है, लिटरली पागल है। थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट आप फ्रेशर बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इनकैप्सुलेशन बोलना आता, एब्स्ट्रैक्शन बोलना आता तो आप बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट अगर आप बोलोगे, इट मेक्स अ ग्रेट इंप्रेशन अबाउट यू गाइस। थर्ड पॉइंट सुनो। Finally, really, I have learned how to call any function by delegate object. But there is a condition, what I am calling and what I am should be what similar. To whom I am calling and what I am basically, it should be similar. Am I right? हम जिसको कॉल कर रहे हैं और जो मैं हूं, वो दोनों बिल्कुल सेम सिग्नेचर का होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सुन लो गधे नालायक। There is a class having several functions. Okay, by this object, no delegate object, simple object, which have got a static nature. ABS space A, new ABS. ABS space A. What is A? Object. New ABS, uncle. By this A, I can call entire function of ABS plus if that class inherit from base class, I can also call. Because my object is having a reference of my class and my class is having a reference of what? Base class. So when why not my object can call both class functions and all? ठीक है अंकल? अब मान लो एक क्लास में 4 फंक्शन है जी, मैं एक ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल करता हूं, क्या हो गया? सर मैं परेशान हो गया। क्या हो गया? करें जब ये नमूना फंक्शन का टास्क खत्म नहीं हो जाता तब तक उस ऑब्जेक्ट से सेकंड फंक्शन कॉल नहीं होगा। ले ऑब्जेक्ट की शिकायत कर रहा है, क्या करूं? सर मैं नहीं कॉल करूंगा आपके फंक्शन को। क्या हो गया? सर मैं जाता हूं आपकी टेलीफोन बूथ पे, एक नमूना गधा बात करता है, साला किसी गधे पता नहीं किसी बात करता है, जब गधे की बात खत्म ना होती साला मैं लाइन लगा रहता हूं, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। उसको वो जल्दी बात करेगा कि आप एक और टेलीफोन प्रोवाइड करो। आपने फील नहीं करी, हमने करी है पुणे में। मुझे अपने पापा से बात करना होता था, उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे और होते हुए मतलब पैसे नहीं थे। पहली बार इनकमिंग था 16 रुपए का, अब जो भी आउटगोइंग था 8 रुपए का, जो भी है। तो लगते थे टेलीफोन बूथ में पापा से बात करनी है। नमूना कोई गला खड़ा है वहां पे, ढक्कन लगे हुए, ढक्कन टाइप से। 5 मिनट वेट करा, बॉस कहो। मैं नहीं कर सकता भाई, मेरा तो मीटर आ रहा है, कोई भी करे हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरा मीटर डाउन है। सर एक और रख ले करे फोन, मीटर डाउन है, ढक्कन। एक आइडियल टाइम खोजते थे तो उसके ज्यादा भीड़ नहीं होती है। एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास का रेफरेंस रखता है बेटे। ये सोच करे एक ही जी, उस ऑब्जेक्ट में उस क्लास के मान लो 5 फंक्शन के नाम आए, ढक्कन एक बार में सारा एक ही फंक्शन क्या होगा? बोलो कॉल होगा। अगला फंक्शन कब कॉल होगा? जब उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ओ माय गॉड, क्या हो गया सर? एवरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इज सपोज सिंक्रोनस कॉल बैक। मैं परेशान हो चुका हूं आपके क्लास ऑब्जेक्ट से। पहले आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती है सर। क्यों? क्या हो गया सर? उस ऑब्जेक्ट से अगला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। क्यों? जब पहला फंक्शन का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग दो। एक मेरा एक नौकर, मेरे 3 नौकर हैं, 3 रनर हैं। मेरे 3 साथी को, नौकर को बहुत 3 साथी हैं जो मेरे काम को ईज करते हो। मेरे साथी है, नौकर नहीं। एक छुट्टी पे था, अब मेरे को थोड़ा राहत मिली क्यों? मैं एक को वहां भेजता था, ये काम रुक जाता था। अब मैं 3 काम एक साथ पैरेलली कर सकता हूं। अब एक नौकर का काम है बस तुम पानी भरेगा सारा टाइम। पानी की दिक्कत बच्चों को नहीं आनी चाहिए। What do you want? I want a synchronous callback, not a synchronous callback, a synchronous callback. So by delegate object, I can achieve a synchronous callback. अच्छा यार मजा आ गया, तो लाजवाब फीचर मिल गई कि डेलीगेट के ऑब्जेक्ट से हम डायनेमिकली किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। हमारा राइट? अरे बालक, अगर रोड पे है, सुनो करिए अंकल, सुनिएगा ठीक से, मैं आपको सिंपल ज्यादा साइकोलॉजी का है। अगर ये 2 आंख आपके घर के अंदर है, आप स्टैटिक बाय नेचर। अरे बोलो यार, आप जिसको पॉइंट करते हो आप सबको जानते हो कि मम्मी है, बहन है, भाई है, जो भी है। पर नालायक की 2 आंख अगर रास्ते के ऊपर निकलती है, वो सब मेरे लिए अननोन होते हैं। हमारा राइट? उनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं होता।
ये आंख अब क्या बोलो, डेलीगेट की तरह काम करती है। जिसे कोई टाइम ही पूछना है, लाजपत नगर कैसे जाऊं, पूछ के जाता हूं। मैं जिससे पूछता हूं मेरा कोई नहीं होता, पर पूछता उसी से है जो लगता है यार मेरे को बंदा जवाब दे सकता है, राइट? लगता है भाई नेचर देखकर। भाई साहब प्लीज, ठीक है? तो मुझे केवल रास्ता बतलाता है, बट लाजपत नगर में क्या हो रहा है ये नहीं बताता। बोलो कौन? हाइडिंग ऑफ। अब जाके देख लो हम क्या करते हैं। तो थर्ड पॉइंट, हम डेलीगेट के ऑब्जेक्ट से, मजा आ गया, असिंक्रोनस कॉल बैक अचीव कर सकते हैं। वो क्या होता सिंपली, सर ये फंक्शन अगर ये काम कर रहा है, सेकेंड फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते जब तक फंक्शन का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। आज देखा आपने सितार वादन क्या रेंडरिंग देती है, एक को छेड़ा छोड़ दिया, सेकंड को छेड़ा छोड़ दिया, थर्ड को छेड़ा, और तीनों मिलकर एक बनाता है। बोलो ध्वनि, बोल साउंड, राइट? नहीं ऐसा, पर ये मत कहो एक को छेड़ा तो बंद हो गया, ये मैं सेकंड को करा दो, और वो सिंक्रोनसली असिंक्रोनस कॉल बैक करता रहता है। बोलो कौन? मेंटेन करता रहता है, किसी को छोड़ा, किसी को पकड़ा, किसी को जोड़ा, राइट? कि पकड़ा, हर को मैनेज कर रहा है। सेकंड, दो हाथ से कोई आदमी 5 बॉल को खेल रहा है, इट इज असिंक्रोनस कॉल बैक, क्योंकि 5 बॉल खेलने के लिए करे 5 हाथ चाहिए था, राइट? नहीं ऐसे में हाउ इट इज मैनेजिंग द टास्क, या उसे फिजिक्स आती है, जबरदस्त फिजिक्स, और उसको वर्क डन आती है, वर्क डन, और उसको थ्रेडिंग आती है। वो बनाती है थ्रेडिंग। तो ब्रेन से खेल रहा है, ब्रेन से बैलेंसिंग कर रहा है, हर का मूवमेंट जानता है। एक फंक्शन का जब टास्क कंप्लीट होगा तब सेकंड फंक्शन कॉल होगा। मैंने पहले वाले टेबल में 17 लाख रिकॉर्ड रखे थे, क्या हो गया, सब दुखी हो गया हूं। पहले वाले फंक्शन कॉल करे, वाइल लूप चली, वाइल आरडी, अरे कभी आरडी याद है, वाइल आरडी डॉट रीड, ओपनिंग और क्लोजिंग, आरडी ढक्कन, ऑब्जेक्ट क्लास, अरे यार आरडी, वाइल लगाई, 16 लाख रिकॉर्ड आएगा, वाह, तब नालायक मेरी सेकंड फंक्शन कॉल होगी। क्या मैं बता देते बैठा 16 लाख के लिए, और नालायक 16 लाख भी कब आएगा, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, डिपेंड्स ऑन डेटाबेस प्रोसेसिंग एंड सीपीयू ओवरहेड। इतना पेशेंस ना है मेरे में। कुछ ऐसा करो ना, वहां से मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता है। क्या बोलो? एक्नॉलेजमेंट। अगर ये फंक्शन इतना समय ले रहा है, ओके, इस वक्त ये काम कंटिन्यू रख। यस सर, अगर ये फंक्शन इतना समय ले रहा है, आई शुड नॉट वेट। तो ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है, और ये फंक्शन भी क्या बोलो, कॉल हो रहा है। ये काम कौन कर सकता है? रीडिंग बाय डेलीगेट और यूजिंग डेलीगेट। यस सर, अरे ढक्कन एक बदलाओ, जैसे करें, एक प्रेशर कुकर है ढक्कन, ऊपर क्या होता है ढक्कन, उसके ढक्कन के ऊपर क्या होता है, सीटी होती है, सब सीटी निकाल दो। बोल क्या करेगा, बोल क्या करेगा, अरे बोल क्या करेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। अगर मैं और ज्यादा कर दूं टेम्परेचर तो अच्छा, ये मत कहो कि खाना नहीं बनेगा, बनेगा। चुप रहो। अगर मैं तुझे कुकर दूं बिना सीटी का, तो क्या दिक्कत आएगी? चल खाना बनेगा 2 घंटे देर से, और दिक्कत क्या आएगी? चल बड़ा बड़े निकल जाएगा। बोल करे सारे स्टीम ही देख रहा है बैठ के, स्टीम से बाहर निकलो, हमें वॉच करना पड़ेगा, कब खत्म होगा ये। सीटी देखे तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा मुझे, नहीं है समझ में, पता लग जाएगा पूरे नहीं बनेगा। हाँ अच्छा, सीटी देगा, चलो ये आलू छील लेते हैं,
नहीं आया समझ? सीटी दे दिया, आजा। तो वो तो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मुझे नोटिफाई कर रहा है, हमारा राइट? अभी सीटी नहीं आया, नहीं आया समझ? कुछ देख रहा है, हवा को देख रहा है, गला जल जाएगा देखो गधे को। सलाह तुम गधे चलाते हैं, आ जाओ। अरे कंफर्म है, नोटिफाई नहीं मिलेगी मुझे, हमारा राइट? जल भी गया गधे या कच्चा निकला, ये बताएगा बोल कौन? सीटी, एक्नॉलेजमेंट। एक बार अंकल क्या हुआ, पिकनिक की बात थी, छोटा था, मैं चौथे पांचवें में पढ़ता था, छठे में पढ़ता था। एक अंकल मुझे बहुत मानते थे, सबको काम मिला पिकनिक में, तो मुझे काम मिला बस तू चावल बनाएगा, और किसी को सारा बर्तन साफ करो, किसी को ये करो। अंकल मुझे बहुत मानते थे, बस तुम बस चावल बना दो। हमें क्या पता चावल पानी, मैंने सारा कुकर में पूरा चावल भर दिया और थोड़ा सा पानी दे दिया, सबका खाना रेडी, अब मेरे चावल निकलने वाला है, दूसरा मेरा मुंह देख रहा है, चावल पूरा जला हुआ निकला। मारपीट हो गई, मारपीट वहां पे खूब मार खाया उसे मैंने, साले तूने क्या किया है? सब बैठे हुए, अब निकलेगा चावल, सारे चिकन मटन सब्जी सब निकली हुई है, अब बस मेरी बारी। कुछ नहीं हुआ, ब्रेड मंगाया गया बात। अब चल गए, तो चला के चले गए घूमने के लिए, सीटी दिया, पता नहीं आवाज ही नहीं आया मेरे को, मैं चला गया कहीं। सीटी से क्या करेगा? सीटी नोटिफाई करेगा, नोटिफाई। उस वक्त कोई और काम कर सकते हैं। तो डेलीगेट के ऑब्जेक्ट से अगर कोई फंक्शन कॉल हो रही है, वो फंक्शन का टास्क कंप्लीट हुआ या ना हुआ, वो डेलीगेट बता सकता है। If the function is not yet completed his task within this time frame, I can call other function. I should not wait. कैसे, ये मत पूछो, करके दिखा देंगे। तुम मत पूछो, मेरे पे छोड़ दो। सर लॉजिक पहले बिल्डअप करो। आज देख क्लास, ऑब्जेक्ट और फंक्शन कितना गंदा लग रहा है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? हर ऑब्जेक्ट क्या बोलो बाय डिफॉल्ट? सिंक्रोनस। और हर क्लास क्या है? सिंक्रोनस सपोर्ट कर। मैं किसमें कन्वर्ट करना है बोलो? अब सिंक्रोनस कॉल बैक। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो विषय गुप्ता बोल कर आया फेयर पोर्टल में, जैसे का निकल गया फेयर पोर्टल, फर्स्ट राउंड निकल गया। फोर्थ पॉइंट, यार तो मुझे बतलाओ, एक क्लास के फंक्शन को तुम कितने तरीके से कॉल कर सकते हो? बड़ा पटांग क्वेश्चन लगा। तो एक काम करो, एक क्लास के फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट से कॉल कर लो, और डेलीगेट से कर लो, और हाउ मेनी वेज, सुनो करे जवाब दो, नाम क्या तुम्हारा? काजल। हाउ मेनी वेज आई कैन कॉल एनी फंक्शन ऑफ अ क्लास? मैं कितने तरीके से बताओ उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता हूं? कहे किसी क्लास में ढक्कन फंक्शन है, हम कितने तरीके से मतलब इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? आवाज जाम मार दूंगा। हाउ मेनी वेज आई कैन कॉल द फंक्शन ऑफ अ क्लास? भाई ऑब्जेक्ट हो गया जी, बेटा भाई डेलीगेट हो गया, थर्ड बोल करेगा अपर खाओगे ढक्कन का स्पेक्टर। मैं आपको उठाऊंगा बाहर फेंक दूंगा। देखो साले मेंबर फंक्शन है ढक्कन, क्या है वो? मेंबर फंक्शन। कहाँ दिमाग है तुम्हारे 3+? हाँ जी आप बोलो ठीक जी। भाई ऑब्जेक्टिव बना बेटे, साले इनहेरिटेंस कर दे, कुछ भी कर दे, बात अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। थर्ड बोलो इवेंट। एक इवेंट से फंक्शन कॉल होता है। अगर ये नहीं बोल पाया
उसने मेरे ऊपर जोड़ों का तमाचा मारा लॉजिकली, तुमको ASP.html भी नहीं आता है। हिलना मतलब अगर एक ASP पे बटन है, जब बटन पे मैं क्लिक नहीं करूंगा फंक्शन कॉल नहीं होगा। ASP.html श्रीवास्तव इवेंट ड्रिवन को सपोर्ट करता है। बोल किसको? इवेंट ड्रिवन। एक नौकर अपने मन से कोई काम नहीं करेगा, सुन ले, तो नहीं करेगा, तो तुम्हारे घर का मेंबर नहीं है बालक। वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। क्या बोलो? इंस्ट्रक्शन बेस्ड है। वो करेगा वो तब तुम उसको बोलोगे। इवेंट बेस्ड है वो। ASPX पेज के ऊपर अगर कोई कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, हम जब तक क्लिक नहीं करेंगे फंक्शन कॉल नहीं होगा। बाय 3 ways I can call the function of any class. By the object of that class, by delegate object of that class, and by the event of that class. And गुरुजी, इवेंट को कॉल करने के लिए डेलीगेट का होना मस्ट है। तुमको सारा वर्ल्ड का कोई बंदा रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे घमंड नहीं अपने नॉलेज पे, मुझे नाज है अपने नॉलेज पे। हमने हजारों इंटरव्यू लिए और दिए, 4 पॉइंट अगर बोल के आओगे ठीक से तो हम इवेंट अंकल बिना डेलीगेट का नहीं बना सकते। हम बिना डेलीगेट का असिंक्रोनस कॉल बैक अचीव नहीं कर सकते। बोलो हम एक बार में एक ही काम करेंगे। नहीं यार, आपको दिमाग लगाना था, उस काम में इतनी अगर देर हो रही थी, आप सेकंड काम कर लेते। आप कैसे नो करो भाई, मैं आपको भेजूंगा नहीं दोबारा कहीं। सांप ने कहा ये काम करके लाओ, कल ये काम करके कहा था लाने के लिए। अगर तुमको लगा इस काम में इतनी देर है तो सेकंड काम कर लेते। क्यों कहते उस काम की खत्म होने का वेट करते रहोगे वहां पे? अब क्या फायदा, चला गया बंदा, इस सामान में किसी काम का नहीं। तो आई फेस दोज थिंग्स माय रियल लाइफ सिचुएशंस। हर चीज मेरे लाइफ से जुड़ी भी रहती है, हर चीजों के पीछे। इट इज असिंक्रोनस कॉल बैक, वो डेलीगेट के बिना नहीं होता है, और थ्रेडिंग के बिना नहीं होता है, या कॉल बैक के बिना नहीं होता है। नोटिफाई करके दो मेरे को। जैसे भूल गया वो जमाने के डायरेक्ट रिकॉर्डर, जैसे अंकल खत्म हुई साइड ए, साइड बी ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। अरे बोल यार, या वेट करो, ढक्कन कोई आएगा उसको प्रेस करेगा तो साला कैसेट निकालेगा, साइड बी लगाएगा। क्या है यार, ये टक 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 बजता रहता ढक्कन। साइड ए आ गया, साइड बी भी आ गया, तो क्या फायदा हुआ? साइड ए खत्म होगा, साइड बी शुरू कहां होगा? ऐसा कुछ करो जैसे साइड ए खत्म हो जाए, ऑटोमेटिक क्या बोलो, साइड बी शुरू हो जाए। क्या बात है यार, मजा आ गया। सिंगल CPU, सिंगल मोटर, 2 चक्का। हम लाइफ को चीजों से रिलेटेड नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं उठ रहा। ASP.NET सपोर्ट करती है, बोलो किसको? चलो बंद करो। कैसा रहा? अब फ्राइडे हम करके दिखा देंगे चारों तरीका। एक तो कराई चुके हैं भाई फंक्शन कॉल।